Hello students, in the last lecture we learned the principles of double entry system and we learned the golden rules of bookkeeping. ये लास्ट वीडियो में आपने देखा था. आज हम वो गोल्डन रूल्स का एप्लीकेशन देखेंगे. लेट अस लर्न हाउ टू अप्लाई दोज गोल्डन रूल्स. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे इज आई एम गोइंग टू पिक अ फ्यू ट्रांजैक्शंस एंड वो ट्रांजैक्शंस के ज़रिए हम लोग गोल्डन रूल का एप्लीकेशन देखेंगे और एप्लीकेशन के ज़रिए सीखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट कैसा करना चाहिए. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. ट्रांजैक्शन 1. सपोज एक ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ने किया है परचेज गुड्स फॉर कैश. सो डबल एंट्री का फर्स्ट प्रिंसिपल ने क्या सिखाया हमें कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व रहता ही है. So the very first job that we need to do is to find out 2 accounts involved here. So one account is purchases. अब वो कहाँ से मालूम पड़ता है? Goods. जब भी ट्रांजैक्शन में गुड्स करके आएगा ना तो 4 वो अकाउंट्स है जो यूज़ होंगे. एक है परचेजेस, दूसरा है सेल्स, तीसरा है परचेज रिटर्न्स, तीसरा है सेल्स रिटर्न्स. सो जब भी गुड्स आएगा ये 4 में से कोई भी एक यूज़ करना है. परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न्स एंड सेल्स रिटर्न्स. सो इन आवर ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स है, इसके लिए वन अकाउंट इज परचेजेस एंड और एक अकाउंट ऑब्वियसली वहाँ पे दिख रहा है वो है कैश. नाउ वी विल फाइंड आउट द टाइप ऑफ अकाउंट. तो टाइप ऑफ अकाउंट का बात करेंगे तो परचेजेस जो है वो नॉमिनल अकाउंट है और कैश वो है वो रियल अकाउंट है. सो डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है ये फैसला करने के लिए इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वी नीड टू यूज द गोल्डन रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट. बिकॉज परचेजेस नॉमिनल है तो परचेजेस का डेबिट क्रेडिट का फैसला नॉमिनल अकाउंट के रूल के थ्रू करेंगे और कैश रियल अकाउंट है तो कैश को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है उसका डिसीजन विल बी टेकन based on the golden rule of real account. So let's quickly run through what are the golden rules of nominal and real account. तो nominal account का golden rule था debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. And real का golden rule is debit what comes in and credit what goes out. Let's try and apply this rule here. Come on. Purchase is nominal account and I believe for the business purchase is an expense. And the rule says debit all expenses and losses. So by virtue of that rule, we will say purchases account debit. The reason is expense. Cash is a real account. And in this transaction, we are buying goods for cash. मतलब goods खरीद रहे हैं और पैसा दे रहे हैं. So credit what goes out, तो cash is going out. So credit, the reason is goes out. Fine. Example 2. Ulta of this, sold goods for cash. So one is sold goods मतलब sales, other account is cash. Sales is a nominal account, correct? And cash is a real account. So once again we got to use the golden rule of nominal and real. So nominal का golden rule once again revision. Debit all expense and losses, credit all incomes and gains. And real का golden rule is debit what comes in, credit what goes out. For the business, sales is an income. मैं goods बेच रहा है, that's an income. And the golden rule of nominal account क्या बोलते हैं? Credit all incomes and gains. तो sales account has to be credited. Correct? So you will credit sales. The reason is credit all incomes and gains. When we sell goods for cash, इसका मतलब क्या? goods हम बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है अपने पास. Cash is real account and the rule says debit what comes in. तो cash is coming in. So debit, the reason is comes in. Clear? Example 3. Purchased goods from Ram. अभी purchased goods from Ram में one account is obviously परचेज गुड्स मतलब परचेजेस, ये एक अकाउंट हो गया. अभी कहीं पर भी देखो ये ट्रांजैक्शन में फॉर कैश करके नहीं लिखा है. सो वेन एवर इन एनी ट्रांजैक्शन, गुड्स वाला ट्रांजैक्शन खास करके, फॉर कैश इज नॉट गिवन एंड ऑपोजिट पार्टीज नेम इज गिवन, देन इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ऑल राइट, आई रिपीट व्हाट आई एम टेलिंग. आई एम टेलिंग गुड्स वाला ट्रांजैक्शन में
whenever for cash is not given and the opposite party's name is given, it is a credit transaction. So one account is purchase का फैसला किया था हम लोग ने, other account will be RAM account. So purchases and RAM ये दो account हैं in this particular transaction. Purchases is obviously a nominal account, तीसरी बार आ रहा है अभी almost, and RAM is a personal account. तो ये ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट को फैसला करने के लिए वी विल कंसिडर नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल. सो व्हाट इज नॉमिनल का गोल्डन रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. एंड पर्सनल का गोल्डन रूल इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. सो परचेजेस नॉमिनल, गुड्स खरीदना बिजनेस के लिए एक्सपेंस, सो डेबिट, द रीजन इज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस. RAM is a personal account and we are buying goods from RAM. We are buying goods from RAM means RAM is giving us the goods. RAM is the giver. So credit the giver. You credit RAM. The reason is giver. Fine. Example 4. Sold goods to Shyam. So one account is again sales. For cash नहीं बोला है, goods वाला transaction है, for cash नहीं बोला है, सामने वाले का नाम दिया है. So other account is obviously Shyam. Sales is nominal, Shyam is personal. So we again pick up nominal and personal का golden rule to decide debit and credit. Correct? Sales business के लिए income है, so credit all incomes and gains. So sales gets credited by using the rule of nominal account. And we are selling goods to Shyam. हम लोग श्याम को goods बेच रहे हैं, तो Shyam is the receiver of the goods. So debit the receiver के हिसाब से you will debit Shyam. All right. Example 5. Example 5. Purchased goods from Ramesh for cash. Purchased goods from Ramesh for cash. So one account is obviously purchases. उसमें कोई doubt ही नहीं है. अभी दूसरा अकाउंट कौन सा रहना चाहिए? रमेश रहना चाहिए या फॉर कैश रहना चाहिए? सो द ऑब्वियस आंसर्स, दूसरा वाला अकाउंट विल बी कैश. नो व्हाई इट विल बी कैश? बिकॉज सिंपल है, हमने गुड्स खरीदा और सामने स्पॉट पे पैसा दे दिया, तो गुड्स किससे खरीद रहे हैं? दैट इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट. गुड्स लिया, पैसा दिया, स्पॉट पे लेन देन खत्म. तो चाहे आप रमेश से ले लो या गणेश से ले लो, किसी से भी ले लो, इट डजेंट मैटर. सो यू विल इग्नोर रमेश एंड यू विल पिक अप कैश. आई होप यू आर गेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड फॉर कैश. फॉर कैश वर्ड का सिग्निफिकेंस समझ गए आपको? सो परचेजेस इज नॉमिनल एंड कैश इज रियल. सो वी यूज नॉमिनल एंड रियल का गोल्डन रूल. सो नॉमिनल का गोल्डन रूल क्या है, अभी तो बाहर हो गया रहेगा आपको, और ये रियल का गोल्डन रूल है. सो अप्लाइंग दीज रूल्स वी कैन फिगर आउट कि परचेजेस को करना है डेबिट. द रीजन इज गुड्स खरीदना इज खर्चा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस. एंड वी आर बाइंग गुड्स मतलब वी आर पेइंग मनी, सो कैश इज गोइंग आउट, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ऑलराइट. एग्जांपल 6. सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फॉर कैश. वंस अगेन गुड्स वाला ट्रांजैक्शन है, फॉर कैश करके बोल दिया है, फॉर कैश करके बोल दिया है मीन्स यू विल इग्नोर प्रकाश. तो सोल्ड गुड्स, तो वन अकाउंट इज सेल्स, यू विल इग्नोर प्रकाश. अदर अकाउंट इज कैश, तो सेल्स एंड कैश ये दो अकाउंट है. सेल्स इज नॉमिनल, कैश इज रियल. नॉमिनल का गोल्डन रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. एंड रियल का गोल्डन रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो अप्लाइंग दीज रूल्स यू कैन फिगर आउट कि सेल्स जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है, सो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स के हिसाब से सेल्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. एंड कैश इज अ रियल अकाउंट एंड हम लोग सेल गुड्स, वी आर सेलिंग गुड्स फॉर कैश, मतलब कैश इज कमिंग इन, सो डेबिट व्हाट कम्स इन करना चाहिए. क्लियर? सो वी आर जस्ट लर्निंग हाउ टू डेबिट एंड हाउ टू क्रेडिट. आई होप अब तक आपको सब कुछ समझा होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, पेड सैलरीज. सो पेड सैलरीज में वन अकाउंट इज क्लियरली सैलरीज, वो दिखता है. दूसरा अकाउंट क्या है? दूसरा अकाउंट इज ऑब्वियसली कैश. पेड मतलब क्या पे किया?
हम थोड़ी सैलरी नाम का वस्तु पे करते हैं, तो वी आर पेइंग सैलरी, मतलब सैलरी के तौर पे हम लोग कैश पे कर रहे हैं. पेड वर्ड के अंदर कैश छुपा हुआ है. सो अदर अकाउंट इज ऑब्वियसली कैश. करेक्ट. सो पेड मीन्स कैश. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कैश इज रियल अकाउंट, ये हमें पता है, और सैलरीज इज नॉमिनल अकाउंट, ये भी हमें पता है. सो रियल एंड नॉमिनल का गोल्डन रूल फिर से यूज करना है अपने को. तो ये गोल्डन रूल्स है. सो लेट्स क्विकली डिसाइड कि क्या करना है. तो वी आर पेइंग कैश, तो कैश इज गोइंग आउट. सो गोल्डन रूल से इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट. तो कैश को क्रेडिट करेंगे बिकॉज इट गोज आउट. हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं मतलब वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है. तो नॉमिनल का गोल्डन रूल में क्या लिखा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सो अप्लाइंग दैट रूल, सैलरी अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड. Convinced? Next example. Very, 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 very important example. Paid salaries to Ashok, the manager. Paid salaries to Ashok, the manager. So paid लिखा है. So last transaction में सीखा हमने, तो one account is obviously cash, उसमें कोई डाउट नहीं है अभी अपने को. Second account क्या होना चाहिए? Should we pick up salaries? Should we pick up Ashok? Should we pick up manager? इसमें बहुत बड़ा confusion रहता है. तो वो confusion को दूर करने के लिए there is one very very important rule that needs to be followed here. And this rule is purpose is more important and not the person. पैसा किस लिए दिया is more important than किसको दिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. ये रूल किसके लिए अप्लाई होता है? इनकम्स और एक्सपेंसेस के लिए. इनकम्स और एक्सपेंसेस के लिए ये रूल यूज करना पड़ता है. पर्पस इज मोर इंपॉर्टेंट एंड नॉट द पर्सन. द मोमेंट आई अप्लाई दिस रूल, सो वन थिंग इज क्लियर कि अशोक को आपको क्या करना है? इग्नोर करना है और पर्पस को पकड़ना है. तो पर्पस क्या है? सैलरीज. आई बात समझ में? Second account is salaries, which is a nominal account. So once again we think of the golden rule and decide. So we are paying cash, real account goes out, so credit. And we are paying salaries, that's an expense. Debit all expense and losses के हिसाब से salary account debit. Easy. Very important rule this one. Huh? Next example. Received interest. So received interest, तो one account is interest, on the face of it दिखाई दे रहा है. दूसरा account is again cash, और वो किसके अंदर छुपा है? received word के अंदर छुपा है. अरे मेरे को इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला मतलब इंटरेस्ट के तौर पे पैसा ही तो मिला. तो इसके लिए और एक अकाउंट क्या है? कैश है. ऑलराइट. सो वन अकाउंट इज कैश, अदर अकाउंट इज इंटरेस्ट. कैश इज रियल, interest is nominal. So once again we got to use nominal and real का golden rules and decide किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है. So cash हमें मिल रहा है, we are receiving, so डेबिट करेंगे. Debit what comes in is the golden rule that we are using here. Interest is a nominal account, और अगर interest मिलता है मतलब हमारे लिए income है, gain है. So credit all incomes and gains is the rule. So वो हिसाब से interest account has to be credited. Create all incomes and gains. All right. Next example. Received interest from Suresh. So received word दिया हुआ है, so उसके अंदर कैश छुपा है. हमने लास्ट ट्रांजैक्शन में पढ़ लिया. So one account is cash, जो कि एक रियल अकाउंट है. करेक्ट. दूसरा अकाउंट क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट या सुरेश? किसको पिक करना है? कम ऑन, गेस करो. Yes, you guessed it right. Purpose is more important and not the person. That's the rule we got to apply here once again. So by virtue of that rule, you will ignore Suresh and you're going to pick up interest. Understood? So the two accounts are cash and interest. Cash तो real है, interest nominal है. So golden rule use करके फैसला कर लेते हैं हम लोग. So we are receiving cash, so cash is coming in, so debit what comes in, and interest is nominal. It's an income here because we are receiving interest, so create all incomes and gains. All right. Next example.
paid carriage. Okay, paid carriage. So one account is obviously carriage. Carriage means transport cost of goods. इसको नहीं पता है. And paid है तो other account is again cash. Cash is real. Carriage is nominal. Transport cost of goods तो खर्चा है वो. So nominal account. So con debit or con credit, let us quickly run through. So you will credit cash because cash is going out. We are paying cash, matlab cash is going out. And transport cost of goods is an expense. Nominal account, debit all expense and losses. All right. One last example. So one last example. Paid carriage on behalf of Rupa, our customer. So again, paid word है तो obviously cash तो है ही, उसमें कोई शक नहीं है. अब second account क्या होना चाहिए? That is again very very important. The second account that we pick up here will be based on a new rule, and that rule is person is more important when the purpose is not ours. Now how did I know कि purpose हमारा नहीं है? वहां पे क्या लिखा है? Paid carriage on behalf of रूपा. रूपा के बिहाफ में हम लोग ने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे किया गुड्स का. इसका मतलब क्या हुआ रहेगा कि रूपा हमारे दुकान पे आकर के गुड्स हमसे परचेज किया होगा एंड रिक्वेस्ट किया होगा गुड्स को उसके वहाँ पे डिलीवर करने को. तो हमने बोला कि देखो ट्रांसपोर्ट खर्चा लगेगा. तो शी सेड कोई बात नहीं सर, फिलहाल आप पे कर दीजिए, मैं आपको बाद में दे दूंगी. ये उसका मतलब है. वी पेड कैरेज ऑन बिहाफ ऑफ रूपा. उसका मतलब क्या समझ गए आपको? सो पर्पस इज नॉट आवर्स. कैरेज हमारा खर्चा नहीं है, रूपा का खर्चा है. Correct? So when the purpose is not ours, you will pick up the person. Person becomes important. So you will ignore carriage and you will pick Rupa. Correct? Rupa is a personal account. So we got to use the rule of golden rule of real and personal. So cash, real account, हम pay कर रहे हैं तो cash is going out, तो cash को credit करना है. Rupa is a personal account. She is the receiver of the benefit. करेक्ट? तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. देखो पैसा उसको नहीं मिला लेकिन बेनिफिट उसको मिला. उसके बिहाफ में हमने कैरेज पे किया, मीन्स आज बिना कैरेज पे किए गुड्स मिल गया ना उसको, तो शी गॉट द बेनिफिट ऑफ दैट. तो डेबिट द रिसीवर इज बिकॉज रिसीवर ऑफ बेनिफिट. फाइन. आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी वेरी यूजफुल टू यू. आपका डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा. इसको आप बार बार देखिए और अकाउंट्स का उस्ताद बनिए. तब तक के लिए अलविदा. टेक केयर. बाय. गुड नाइट.